Hello everyone. In this video, I am doing a preparatory assignment based on the chapters Profit, Loss and Discount, Parallel Lines and Mensurations. So first we will do 1 mark questions. So I am showing the assignment to you. 1 mark question is find the height of a cuboid whose volume is 225 centimeter cube and base area is 25 centimeter square. So question number 1, let height of cuboid that is equal to h, then base area of cuboid. बेस एरिया को बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी. सो दैट इज गिवन इक्वल टू 25 cm square, 25 centimeter square. Now we are to find height. Volume is given, volume of cuboid, it is equal to 225 cm cube centimeter cube. It implies the formula of volume is L into B into H. It is equal to 225. Now L into B value you have 25. तो L into B की जगह आप क्या पुट कर दो 25 into H. It will be equal to 225. So H will be equal to 225 अपॉन 25. 5 से कटिंग करते हैं, 5 5 are 25, 5 4 are 22, 5 5 are 5 9 are. H की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड in the bracket H, that is equal to 9 centimeter. Now we will proceed for question number 2. Question number 2 है a polyhedron has 5 faces and 9 edges, find its vertices. So what is given to you? F equal to 5, faces are 5 comma edges are 9, E is equal to 9. So by using Euler's formula, EULER' formula, F plus V is equal to E plus 2. F plus V is equal to E plus 2. F की वैल्यू 5 प्लस V को V लिख दो, E is 9 प्लस 2. सो इट इज V 9 प्लस 2 है 11 और 5 राइट में जाके माइनस 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6. तो वर्टिसेस कितने आ गए 6. देयरफॉर वर्टिसेस इक्वल टू 6. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is find the side of a die whose volume is 64 centimeter cube. तो डाई का ईच फेस जो है वो स्क्वायर शेप होता है. तो सबसे पहले आप वॉल्यूम लिखो डाई का. वॉल्यूम ऑफ डाई इज ऑफ क्यूबिकल शेप. वॉल्यूम ऑफ डाई इज इक्वल टू 64 cm क्यूब. तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है साइड क्यूब होता है, तो साइड का होल क्यूब इज इक्वल टू 64. अब यूनिट नहीं लिखनी है, तो साइड का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब, बिकॉज 4 4s are 16 and 16 4s are 64. देयरफॉर साइड ऑफ डाई इट इज इक्वल टू 4 centimeter. Now question number 4 of the assignment, it is
फाइंड द वैल्यू ऑफ y गिवन m पैरेलल टू l। फिगर ड्रॉ करनी है। दिस इज वन लाइन and there is an another line which is parallel to this line. So these are the two parallel lines. ये लाइन m है और ये लाइन l है। This is a transversal, that is T, transversal T. This angle is 135 degree and this angle is y. So here M is parallel to L, M parallel to L, and what is transversal? T be a transversal, T be a transversal. So it is asked to find Y. So here where 135 degree angle is there you can write 1 और जहां पर Y है वहां पर आप 2 लिख दो। क्या ऑब्जर्व कर रही हो? दिस इज पैरेलल लाइन, दीज आर M पैरेलल L, T ट्रांसवर्सल। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर को इंटीरियर एंगल, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 it is equal to 180 degree. In the bracket you can write co-interior angles. को-इंटीरियर का सम कितना होता है? 180। अब एंगल 1 कितना है? 135 डिग्री प्लस एंगल 2 के प्लेस के ऊपर आप y लिख दो, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5, 7 माइनस 3, 4, 45 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ y. Now we will do the next question number 5. Question number 5. The question is the cost price of 10 articles is equal to selling price of 9 articles. Find the profit percentage. It seems like nothing is given in this question. We need to assume cost price of 10 articles is equal to selling price of 9 articles. Let CP of one article, cost price of one article, ये क्वेश्चन x से भी हो जाएगा 1 से भी हो जाएगा। मैं अभी 1 से कर देता हूं, ₹1। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज ₹1। देन इट इज रिटन दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो आप क्या करो, पहले तो सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स फाइंड आउट कर लो। सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स क्या आएगा? ये ₹1 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो दिस इज ₹10। 10 आर्टिकल्स का सीपी कितना आ गया? ₹10। अब आप लिखेंगे एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। SP of 9 articles is equal to CP of 10 articles. तो SP of 9 articles, SP of 9 articles is equal to कितना आया था? CP of 10 articles 10 रुपीज, सो ₹10। अब आपके पास ऊपर एक आर्टिकल का CP है, तो SP भी आपको 1 आर्टिकल का ही निकालना पड़ेगा। तो SP of 1 आर्टिकल, अगर 9 आर्टिकल्स का SP 10 है तो एक का कितना होगा? ₹10/9। आप इसको मत कन्वर्ट करो, ऐसे रहने दो। अब आप ऑब्जर्व करो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 10/9 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 1 है। तो कौन सा बड़ा हुआ? SP बड़ा हुआ या CP? SP। तो आप लिखेंगे सिंस SP ग्रेटर देन CP, comma there is profit, there is profit। अब प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। सो ₹10
एसपी कितना है आपके पास 10/9 माइनस सीपी कितना है आपके पास 1, 10/9 माइनस 1. नाउ रुपी एलसीएम इज 9. 9 divided by 9 1 into 10 is 10 minus 9 ones are 9. तो दिस इज रुपी 1/9. तो ये आपके पास क्या आया प्रॉफिट. लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है. तो आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी into 100. So how much is the profit? 1/9 over CP is how much? 1 into 100. 1/9 over 1 into 100. तो ये बना 1/9 into 100. अगर आप 100 को 9 से डिवाइड करते हो तो ये 11.11% अप्रोक्सीमेट आएगा. 11.11 अप्रोक्सीमेट. अब क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद करते हैं स्टार्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन. 3 मार्क्स क्वेश्चंस. तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया 8%. द आर्टिकल वॉज सोल्ड ऑफ ₹460. फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो सबसे पहले आपने आर्टिकल कितने का बेचा है ₹460 का. तो आपको लिखना है यहां एसपी ऑफ आर्टिकल. एसपी ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹460. जो जो चीजें दे रखी हैं वो आपने लिख लेनी है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 460. नाउ व्हाट इज मोर गिवन? दिस इज गिवन डिस्काउंट परसेंट. हाउ मच इज गिवन डिस्काउंट परसेंट? इट इज गिवन 8%. तो आपको पता है जब आपके पास एसपी दे रखा हो और डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो तो आप मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला लगा सकते हैं. देयरफॉर एमपी ऑफ आर्टिकल, मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल. तो क्या फॉर्मूला था मार्क्ड प्राइस का? याद करो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एमपी. तो वैल्यूज पुट कर दो. रुपीज एसपी कितना है 460 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 8. अब कई बच्चे इसको 100 को कैंसिल कर देते हैं. नो, ऐसे कैंसिलेशन नहीं होगी. इसको पहले डी मास से सॉल्व करो. 460 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 8 इज 92. नाउ वी विल डू इजी कैंसिलेशन. तो कैसे करनी इजी कैंसिलेशन? आपने ये देखो 23 के टेबल से 23 4s are 92, 23 2s are 46 and 0 और 4 1s are 4 and 4 5s are 20. तो ₹100 into 5 is 500. Now we will do next question number 2. Question number 2 I am reading here. This is a customer paid ₹840 including 5% GST for a pair of shoes. What was the selling price of the shoes? Means शॉपकीपर के लिए शूज का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा. 840 रुपीज जो कस्टमर ने पे किए हैं उसमें जीएसटी ऑलरेडी एडिड अप है. राइट, गुड्स सर्विसेज टैक्स ऑलरेडी एडिड अप है. तो आपने सेलिंग प्राइस निकालना है शूज का विदाउट जीएसटी. तो आप लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ शूज, let
प्राइस ऑफ शूज बिफोर GST was added. Let price of shoes before GST was added. This you can assume as rupees X. Shoes का price before adding GST. Now according to question ATQ, आपको 840 दे रखा है इंक्लूडिंग 5% GST। तो आप यहां लिखेंगे CP प्लस GST इज इक्वल टू रुपीज कितना दे रखा है ये 840। कॉस्ट प्राइस प्लस GST इज इक्वल टू रुपीज 840। CP कितना आपने एज्यूम किया X प्लस GST की परसेंटेज क्या दे रखी है आपको 5%। तो आप लिखेंगे 5% ऑफ किसका X का। सो X प्लस 5% ऑफ X इज इक्वल टू 840। अब इसको बड़े ध्यान से देखना सॉल्व कैसे करेंगे। X प्लस 5% का मतलब है 5/100। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लाई X। इट इज 840। 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0। तो ये बना X प्लस X ओवर 20 इज इक्वल टू 840। अब एलसीएम 20 है, 20 इंटू एक्स इज 20x प्लस 1x इज 21x अपॉन 20। 21x अपॉन 20 इज इक्वल टू 840। तो 21x किसके बराबर बनेगा, ये 20 जो है वो 840 को मल्टीप्लाई करेगा। 21x इज इक्वल टू 840 इंटू 20। तो क्या फाइंड आउट करेंगे x, इट इज इक्वल टू 840 इंटू 20 अपॉन 21। अब या तो आप स्मॉल टेबल से कटिंग कर लो या फिर कोई आपको ये पता है 21 1s are 21 4s are 84 एंड 0। x की वैल्यू आएगी रुपीज 4 2s are 8 एंड 0 800। तो ये आपके पास क्या आया, प्राइस ऑफ शूज बिफोर GST वॉज एडेड, और आप इसको सेलिंग प्राइस ऑफ शूज भी बोलेंगे। सो देयरफॉर प्राइस ऑफ शूज बिफोर GST was added, price of shoes before GST was added, and it is equal to selling price of shoes. So it will be equal to how much, rupees 800. Now we will do question number 3rd. Question number 3, it is a cylinder of curved surface area 1152 meter square is formed from rectangular metallic sheet। आपके पास एक रेक्टेंगुलर मेटालिक शीट थी, आपने उसका क्या बना दिया, सिलेंडर। सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इफ इट्स लेंथ इज डबल ऑफ द ब्रेड्थ। सो वी विल स्टार्ट नाउ। For rectangular sheet, ये आप एक कॉमन हेडिंग दे सकते हैं फॉर रेक्टेंगुलर शीट। क्या बोला गया इसमें कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इफ इट्स लेंथ इज डबल ऑफ द ब्रेड्थ। सो वी विल राइट लेट ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ आप क्या कर लो, इस रेक्टेंगुलर शीट की एज्यूम x, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। देयरफॉर लेंथ बोला है डबल है, तो क्या हो जाएगा 2x मीटर। अब आपको पहले भी एग्जाम्पल देकर समझाया जा चुका है कि ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट है, राइट। सो
फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर शीट वी आर फॉर्मिंग अ सिलेंडर। अब इसमें ये नहीं बोला कि आप इसको लेंथ के अलोंग रोल करो या ब्रेड्थ के अलोंग रोल करो, बस जस्ट आप रोल करके इसका क्या बना दो, सिलेंडर। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है वो एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। So what will be the formula of area? L into B. So it is 2x into x. So that will be 2x square meter square. 2x square meter square. बनाया क्या इसका, सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1152 मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे सिंस सिलेंडर इज मेड फ्रॉम rectangular sheet, since cylinder is made from a rectangular sheet, therefore area of rectangular sheet it will be equal to curved surface area of cylinder। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया जो है वो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर के क्या बन जाएगा, इक्वल। सो इंप्लाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना आपके पास आया था, 2x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1152। इट इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1152 डिवाइडेड बाई 2। 2 5s are 10, 1 11 15, 2 7s are 14, 1 and 2 6s are 12, 576। So x square will be equal to 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है, 24s are 576। Now square is same, so x will be equal to 24 meter। Now what we have to find out? Find the dimensions of rectangular sheet. Therefore dimensions of rectangular sheet are लेंथ, क्या ज्यूम की थी, लेंथ ऊपर 2x थी, सो 2 इंटू 24 मीटर, सो इट इज 48 मीटर। और जो ब्रेड्थ है वो क्या थी, दैट वाज x, और x कितना आया है, 24 मीटर। नाउ length of breadth we have found and breadth of sheet we have found. So if you check this question like 48 into 24, तो आपको आंसर पता क्या मिलेगा, 1152 ही मिलेगा। इसका मतलब जब आपने रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करके सिलेंडर बनाया तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास 1152 ही आंसर आएगा। Now we will start question number 4. A reduction of 20% in the price of sugar enables Mrs. Rima to buy an extra 3 kg of it for rupees 600. Find the original rate of sugar per kg. क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 20% रिडक्शन कर दी जाए प्राइस ऑफ शुगर में तो मिसिज रीमा एक्स्ट्रा 3 kg शुगर परचेज कर सकती है। कितने रुपीस में, 600 में। तो आपको ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर पर केजी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें एज्यूम करेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस
per kg of sugar. Let original price per kg of sugar, it is equal to rupees X. Percentage of reduction, percentage of reduction in the price, percentage of reduction in the price. कितना परसेंट प्राइस रिड्यूस हुआ? दैट इज 20%. नाउ reduced price per kg of sugar, reduced price per kg of sugar. तो क्या करना, ओरिजिनल प्राइस में से x में से x माइनस 20% ऑफ x माइनस 20% ऑफ x, ये फाइंड आउट करेंगे. ये बनेगा x माइनस 20/100 इंटू x. 21 जार 20, 25 जार, तो ये बना रुपीज ब्रैकेट में x माइनस x/5. तो इसको सॉल्व करते हैं. रुपीज 5 इंटू एक्स 5x माइनस x इज 4x/5. दिस इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ शुगर. अब क्वांटिटी ऑफ शुगर, quantity of sugar that can be bought, quantity of sugar that can be bought for rupees 600, for rupees 600 ओरिजिनली. अगर मान लो रिड्यूस ना करते तो 600 रुपीज की कितनी शुगर खरीदी जा सकती थी? इट इज 600/x. So quantity of sugar that can be bought for rupees 600 originally, that is 600/x. अब quantity of sugar that can be bought, quantity of sugar that can be bought for rupees 600 with reduced price. अगर प्राइस कम कर दिया तो 600 में कितनी शुगर खरीदी जा सकती है? तो कैसे निकालना? सेम तरीके से 600 अपॉन, अब x के प्लेस के ऊपर क्या आएगा? 4x/5. 600/4x/5. इसको सॉल्व करते हैं. 600 मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकेट कर दो 5/4x. 4 और 600 कटेंगे 150. तो ये बना 750/x. 750/x. Now we will do according to question. According to question. According to question क्या करना है? किसमें से क्या माइनस करेंगे? जो क्वांटिटी ऑफ प्राइस दैट कैन बी बॉट फॉर रुपीज 600 विद रिड्यूस्ड प्राइस कितना आया? 750/x. सो 750/x. इसमें से क्या माइनस करना? जो क्वांटिटी ऑफ शुगर ओरिजिनली परचेज की जा सकती थी, दैट इज 600/x. 750/x इज इक्वल टू आएगा 600/x. एंड देन एक्स्ट्रा कितनी परचेज की जा सकती थी? 3 kg. सो 3 विल बी एडेड हियर. 750/x is equal to 600/x plus 3. Now terms of x to the left side, 750/x minus 600/x is equal to 3.
So LCM is x in the numerator 750 minus 600 is equal to 3. 750 में से 600 माइनस करने हैं. दिस इज 150 अपॉन x इज इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई 3x will be equal to 150 and x is equal to 150 upon 3. 3 5s are 15 and 0. So therefore original price of sugar कितना आया x यानी ₹50. So original price of the sugar is ₹50. Now we will do question number 5. This is question number 5. So in the given figure, both RISK and CLUE, risk and clue, are the parallelograms. Find the value of x. So here I have drawn the figure. Now you can see here what are given parallelograms. RISK. So I am doing it little dark. See, this RISK, risk, is a parallelogram, right? So you know that RK is parallel to IS. Here I am writing RK parallel IS, and this KS be a transversal. KS be a transversal. Now you can see here this angle 1 and this you can write yourself angle 2. तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री and we will write that they are co-interior angles. Now angle 1 is of 120 degree. 2 एंगल को आप 2 ही लिख दो as it is equal to 180 degree. So angle 2 will be equal to here 180 degree minus 120 degree, that is equal to 60 degree. Now another parallelogram is also given and the name of that is clue. CLU, this and this. This is another parallelogram. इसको नंबर दे दो 370 डिग्री को, राइट. एट दिस यू कैन गिव नंबर 4. लिखना कैसे है? दिस इज opposite angles of parallelogram are equal. Since opposite angles of parallelogram are equal, therefore in parallelogram CLUE, in parallelogram CLUE, angle 3 is equal to angle 4. What is the reason? Opposite angles of parallelogram. अब आपके पास एंगल 3 तो दे रखा है 70 डिग्री. सिंस एंगल 3 is equal to 70 degree, therefore angle 4 has also come out to be 70 degree. अब ये EOS में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल EOS, angle 2 plus angle 4 plus angle X, they will be 180 degree. Angle 2 plus angle 4 plus X, the sum of these will be 180 degree. How much is 2? Angle 2 कितना है? 60 degree.
और एंगल 4 कितना है 70 डिग्री एंड x विल बी x ओनली, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. 70 प्लस 60 इट इज 130 डिग्री प्लस x is equal to 180 degree. So x will be found from here 180 degree minus 130 degree. So x will be equal to 50 degree. So we were to find x only in this figure. So x has been found. Now let's do question number 6. This is the figure of question number 6. Here I am reading. In the given figure, angle A equal to 70 degree. You can see here this angle A is equal to 70 degree. Then angle ECD 50 degree. ECD. See, this is 50 degree. Then CE parallel AB. तो ये है CE, it is parallel to AB. Then find angle 1, angle 2 and angle 3. This is angle 1, this is angle 2 and this is angle 3. We are to find these. I have darkened the figure so that it becomes clear to you. Now, how we are to proceed? Angle A 70 degree, right? Then angle ECD, it is 50 degree. Then CE parallel AB, this is also given. Now we are to find angle 1, then angle 2 and then angle 3. ये देखो ए बी और सीई पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 1 के बराबर होगा. ये देखो दिस एंगल ऐसे है ना ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. तो कैसे लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सीई एंड दिस ए सी बी अ ट्रांसवर्सल, AC be a transversal. So angle here we can name as 1, 2, 3. We have already named. This can be 4. This can be 5. So angle 4 is equal to angle 1. And the reason for the same is alternate interior angles. So we are given angle 4. Since angle 4 how much degree? 70 degree. Therefore angle 1 will also be 70 degree. अब क्या करेंगे? एंगल ACD फाइंड करेंगे. ACD. एंगल ACD is the combination of two angles, एक 1 और एक 5. एंगल 1 plus एंगल 5. How much is angle 1? 70 degree and angle 5 is 50 degree. तो कितना बना? 120 degree. Right? Now ये जो एंगल ACD ये पूरा कंप्लीट एंगल और एंगल ACB यानी एंगल C ये लीनियर पेयर बना रहे. एंगल ACD प्लस एंगल ACB को आप सिंपल एंगल C लिख दो. इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज लीनियर पेयर. ACD तो आपने अभी अभी फाइंड आउट कर लिया 120 डिग्री. एंगल C का नाम क्या है यहां? एंगल 3. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 3 क्या बना? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल कौन कौन से की वैल्यू फाइंड आउट करने को, 1, 2 और 3 की. तो 1 की भी आपके पास आ चुकी, 3 की भी आ चुकी. अब आप 2 एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, या एंगल सम प्रॉपर्टी से
या एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। मैं यहां एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल नहीं दे रखा, 3 एंगल की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री, 4 एंगल की वैल्यू भी आपके पास है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 60 प्लस 70 इज 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री minus 130 degree. So this is 50 degree. So you were supposed to find angle 1. So angle 1 कितना है 70 degree. Then angle 2 that is has come out to be 50 degree. And then angle 3 that has come out to be 60 degree. So this was the solution of question number 6. Now we will do 5 mark questions. 5 marks questions. So in 5 marks questions, the first question I am reading here. First question. Question is, a cylindrical vessel without lid has to be tin coated. So here I am showing the figure to you. This is a cylindrical can and no lid is there. So cylindrical vessel without lid has to be tin coated, means plating is to be done inside as well as outside. If the radius of the base is 70 centimeter and height is 1.4 meter, see here, base is in centimeter but height is in meter. Calculate the cost of tin coating at the rate of rupees 3.50 per 1000 centimeter square. So we will proceed here. How much is the radius given? 70 centimeter. This R, it is 70 centimeter. So we will write one time only for cylindrical vessel. For cylindrical vessel, this is a common heading. For cylindrical vessel, radius R, how much? It is 70 centimeter. And height, that is h, ये कितनी दे रखी है 1.4 मीटर. दिस वन हाइट h. अब आप क्या करेंगे, हाइट को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में. तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. सो 1.4 इंटू 100 सेंटीमीटर. सो दिस इज 14/10 multiplied 100. So 0 cancels with 0. It is 140 centimeter is the height of the cylindrical vessel. Now we will find area to be tin coated. Area to be tin coated. Area to be tin coated, that is equal to, since it is to be tin coated inside and outside, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा किसको, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच प्लस उसका बेस है तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर. 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपने जो टिन कोटिंग करनी है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ करनी है. अब यहां से पाई आर कॉमन आ सकता है, तो 2 तो ऑलरेडी बाहर है तो 2 पाई आर हो गया ये, राइट. तो अंदर क्या बचा h प्लस पाई आर स्क्वायर को ये पाई आर डिवाइड करेगा. व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड हियर, दिस 2 इज ऑल्सो देयर, क्योंकि 2 पाई आर एच को अगर 2 ये डिवाइड करेगा सो 2h विल बी इनसाइड प्लस पाई आर इज आउटसाइड, सो इनसाइड विल बी लेफ्ट r.
एक बार फिर से देख लो, 2 का 2 ऑलरेडी है, यहां से आपने पाई आर और यहां से भी पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहां 2h अंदर बचा और यहां एक r इनसाइड। अब वैल्यूज आप पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, r जो है वो 70 है, देन 2 इंटू एच जो है वो 140 है, प्लस r इज 70, और ये जो एरिया है वो किस में आएगा, यूनिट में, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1s are 7, 7 10s are 70, और फिर 22 2s are 44, साथ में एक 0, देन इंटू 140 इंटू 2 280 प्लस 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा 440 मल्टीप्लाइड 280 प्लस 70 बनेगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप 44 को 35 से मल्टीप्लाई करो और जो भी आता है उसके आगे 2 zeros इंसर्ट कर दो, तो ये बनेगा 1540 और साथ में ये 2 zeros आ जाएंगी, तो दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको जो कॉस्ट दे रखी है टिन कोटिंग की वो 3.50 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो आप लिखेंगे यहां पर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग या कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये कॉस्ट कितनी दे रखी है, रुपीज 3.50। नाउ कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो ये कैसे निकलेगी, रुपीज 3.50 डिवाइडेड बाई 1000। देन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, 154,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये कैसे करेंगे, रुपीज 3.50 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 154,000। तो ये 000 और 000 कैंसिल हो जाएंगे। 3.50 को आपने 154 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा कैंसिलेशन एटसेट्रा करके रुपीज 539। So this is the cost of tin plating. Now we will do question number 2 of 5 marks. Question number 2 क्या है, a cycle merchant allows 25% discount on the marked price of the cycle and still makes a profit of 20%. If he gains rupees 600 over the sale of one cycle, find the marked price of the cycle. तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेना है, कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है मार्क्ड प्राइस के ऊपर, 25% डिस्काउंट, और डिस्काउंट मिलने के बाद भी उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट। देन टोटल गेन इज ऑल्सो गिवन 600 ओवर द सेल ऑफ वन साइकिल, सो वी नीड टू फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द साइकिल। तो कैसे स्टार्ट करना है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। So here first you will write gain percent whatever is given. तो gain percent आपको कितना दे रखा है उसने, 20%. So gain percent is equal to 20% and one overall gain is also given. How much is that? Rupees 600. Now you know that gain percent का क्या फॉर्मूला होता है, gain upon CP इंटू 100, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपके पास गेन परसेंट कितना है, देखो 20, इट इज इक्वल टू, देन हेयर 600 रुपीज इज ऑल्सो गिवन। तो ये 600 क्या है, ये देखो, इफ इज गेन ओवर सेल ऑफ वन साइकिल इज 600, तो ये 600 जो है वो कहां पर आएगा, यहां पर, दिस इज 600 अपॉन
सीपी इज नॉट गिवन टू यू, तो सीपी को सीपी लिख दो आप, 100 को 100। अब आपने यहां से सीपी फाइंड आउट करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? सीपी को इस तरफ ले आओ, सीपी इज इक्वल टू 600 यही रहेगा, और ये जो 20 लेफ्ट में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू 100। तो 21 आर 20 एंड 25 आर 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ₹600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 3000। हाउ मच? 3000। नाउ गेन परसेंट, as already I have written above, it is 20%, and CP just now you have got how much? ₹3000। अब आपके पास गेन परसेंट है, CP है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? SP। तो SP का फॉर्मूला क्या होगा सेलिंग प्राइस का? CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। CP into 100 plus gain percent upon 100. So rupees, how much is the CP? 3000 into 100 plus gain percent is 20 upon 100. So 2 zeros will cancel with 2 zeros. So now we will multiply. This is rupees 30 multiplied by 120. So that will be rupees 12 3s are 36 and along with 2 zeros. तो ये आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आ गया 3600, और फिर उसने डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है? 25%। तो आप यहां लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट इट इज इक्वल टू 25%। अब आपके पास एसपी है, डिस्काउंट परसेंट है, क्या निकाल सकते हो आप? मार्क्ड प्राइस। देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ द साइकिल। तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ मार्क्ड प्राइस विद यू। व्हाट इज दैट? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो वैल्यूज पुट कर दो। रुपीज, हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस? 3600 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 25%, तो -25। कैंसिलेशन डायरेक्ट नहीं करनी है आपने। रुपीज 3600 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 100 माइनस 25 इज 75। 25 3s are 25 4s are 3 1s are 3 3 1s are 3 200। So this is 1200 into 4, that is equal to rupees 4800. This is the marked price of the cycle. So you can write the answer in the end again. Therefore marked price of cycle is equal to rupees 4800। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिव्यू कर लो। आपको गेन परसेंट दे रखा था और ओवरऑल गेन दे रखा था 600। तो आपने गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाया, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन परसेंट इज 20, गेन इज 600 अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करके आपने क्या निकाल लिया? सीपी। गेन परसेंट है, सीपी है, फिर आप एसपी निकालोगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो एसपी आ गया 3600, फिर आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 25%, फिर आप क्या निकाल लोगे? एमपी। सो दिस वे वी विल प्रोसीड फॉर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। एन आयरन पाइप 62 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब भी आयरन पाइप की बात की गई और उसका एक्सटीरियर डायमीटर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है और थिकनेस ऑफ पाइप इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ड्रॉइंग द फिगर हियर। क्वेश्चन नंबर 3। So for this question you also need to draw the figure. This is the pipe, iron pipe. This is its outer surface and this is its inner surface.
its length is given 62 centimeter, means this is h 62 centimeter. Then what more is given? Its exterior diameter is 25 centimeter. So exterior radius can be found 25 upon 2 means 12.5 centimeter. और एक इसकी ये थिकनेस दे रखी है स्मॉल t, that is equal to 1 centimeter, right? So we need to find the whole surface area of the pipe. So first of all you will write here height of iron pipe, height of iron pipe, and it will be denoted by h. How much it is? 62 centimeter. Now exterior या outer diameter, exterior diameter or you can say outer diameter, it is equal to 62 centimeter. So exterior radius can be found, that will be denoted by capital R. So it will be 62 upon 2 centimeter, that is equal to 31 centimeter exterior radius. Now thickness of the pipe is given, that is denoted by small t. It is how much? 1 centimeter. Now interior or internal radius, it will be denoted by small r. तो इनर रेडियस या इंटीरियर रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सटर्नल रेडियस में से थिकनेस को माइनस करना है, तो 31 में से 1 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आयरन पाइप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आयरन पाइप. एक तो आप निकालोगे इसका आउटसाइड सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि आउटसाइड है तो कर्व्ड होगा, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस ये जो ऊपर और ये नीचे हैं इनको रिम्स बोलते हैं, प्लस एरिया ऑफ 2 रिम्स, एरिया ऑफ 2 रिम्स मीन्स टॉप बेस एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम. सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई कैपिटल आर एच. कैपिटल आर क्यों? क्योंकि इट इज आउटर, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच. अब जो एक रिम है उसका एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, लेकिन 2 रिम्स हैं तो इसको 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज एंड फर्दर कैलकुलेशन. सो सी हियर, in this and this we can take out 2 pi common. So inside capital R small h plus small r small h plus capital R square minus r square. Now we will put the other values. 2 into pi is 22 by 7. Then square bracket. How much is capital R? Capital R is 31 and small h is 62, plus small r is 30 and h is again 62, plus capital R square, that is 31 square, minus small r is 30, this. Now you will calculate 44 upon 7 into 31 will be multiplied by 62, so that is 1922, plus now
30 will be multiplied with 62, that will be 1860, plus 31 will be multiplied with own means 31, that is 961, minus 30 into 30 is 900. So it is 44 upon 7. Now these three will be added, 1922 plus 1860 plus 961. So this will be 4743 minus 900, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी यूनिट. सो 44 अपॉन 7 इंटू, अब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे 4743 में से माइनस करेंगे 900, सो दैट इज 3843. 3843 को अगर आप 7 से कटिंग कर दे, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, 3 34 बना, 7 4 जार 28, 6 7 9 जार कितना यह कैंसलेशन करके 549. अब आप 549 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, तो यह आएगा 24,156 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आपको फाइंड आउट क्या करना है, you have to find out the area only, that in centimeter square the area has come and it is the area of total pipe. तो लास्ट में आंसर एक बार लिख देंगे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, therefore whole surface area of iron pipe, whole surface area of iron pipe, that is equal to 24156 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर ये मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा जाए तो आप इसको 10,000 से डिवाइड कर सकते हो और पॉइंट को प्लेस कर सकते हो. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज द आउटर डायमीटर ऑफ अ मेटालिक ट्यूब इज 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर. Find the weight of 2 meter long tube if the density of the metal is 7 gram per centimeter cube. This question is also very important. So let's start question. This is 4th question and its solution is, this is metallic pipe. Again it is hollow. So this way it will be drawn. Now thickness, this is outer area, this is inner area. So whatsoever is given that you will depict in the figure. This is outer diameter is 14 centimeters. So outer radius, that capital R will be 14 over 2 means 7 centimeter. Thickness T, this thickness T, how much it is given? 1 centimeter. So we can find here internal radius, and tube's length is given 2 meter, h 2 meter. This is the length of the tube. Now we will start doing the solution for metallic tube. For metallic tube, the length is h, that is given equal to 2 meter. So we will convert it into centimeters. 1 meter is equal to 100 centimeters, so it is 200 centimeter. Then outer diameter या exterior diameter कितना दे रखा है क्वेश्चन में? आउटर डायमीटर 14 सेंटीमीटर. तो आप यहां से आउटर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. आउटर रेडियस, एंड यू विल डिनोट इट बाय कैपिटल आर.
that is equal to 14 upon 2 centimeter, that is equal to 7 centimeter. Then you are given thickness T, that is equal to 1 centimeter. So we can find from here inner radius, that is equal to small r. It is equal to outer radius minus thickness. So outer radius is here 7 minus 1 centimeter, that is equal to 6 centimeter. Now we are to find the weight of 2 meter long tube. For weight we need to find first volume. The volume of metallic tube, that is equal to outer volume minus inner volume. Outer volume minus inner volume. So outer volume will be pi capital R square H minus pi small r square h. Pi h common लेंगे and inside will be capital R square minus R square. Now we will calculate it. Pi 22 by 7, h 200 and capital R 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r इंटरनल रेडियस इज 6, so 6 का स्क्वायर, unit will be centimeter cube. So it is 22 into 200 is 4400 upon 7 into 7 7s are 49 minus 6 6 are 36 cm cube. So it will be 4400 upon 7 into 49 minus 36, that is 13 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ आप 4400 और 13 को मल्टीप्लाई कर ले, ये आएगा 57,200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पर आपने कोई पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप आगे आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वेट ऑफ 2 मीटर लॉन्ग ट्यूब इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब है कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल जो है वो 7 ग्राम है. तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 7 ग्राम मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल. वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इज इक्वल टू 7 ग्राम. तो आपने कितने सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है? वेट ऑफ जितना आपने वॉल्यूम निकाला, वेट ऑफ 57,200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब मेटल. वेट ऑफ 57,200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब मेटल, it is equal to 7 multiplied by 57,200 upon 7. This is in grams, right? So 7 and 7 will be cut. It is 57,200 grams and we can convert it into kilograms. 57,200 upon 1000 and it is kg. So 2 zeros cancel with 2 zeros. It is 57.2 kg. So weight of this much metal tube is 57.2 kg. Now we will do question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रहा हूं. Two parallel sides DC and AB of trapezium are 12 centimeter and 36 centimeter respectively. Non-parallel sides are each of 15 centimeter. Find area of trapezium.
This question is also very very important. So question number 5, we will make a trapezium here. This is trapezium and sides are 36 centimeter is AB. तो AB आप यहां लिखेंगे AB. This is CD. How much is AB? 36 centimeter. And how much is CD? That is equal to 12 centimeter. These are the two parallel sides. Non-parallel sides are 15 centimeter and 15 centimeter. We need to find the area of the trapezium. So how we will write? Let ABCD. Here if it is given that already given that ABCD is trapezium, so you need not to write let. ABCD is a trapezium. आप सीधा लिख सकते हो ABCD is a trapezium in which parallel sides are, one is AB and that is how much? 36 centimeter. And CD, how much is that? That is 12 centimeter. One is 36 and another is 12 centimeter. Then we will write non-parallel sides are. Non-parallel sides are, one is AD and another is BC, and both are equal to 15 centimeter. Here we need to do one construction and that must be written also. AD के पैरेलल एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है, लेट इट इज CE, और एक करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ, उसका नाम CF होगा. CF परपेंडिकुलर ऑन AB. तो आप लिखेंगे ड्रॉ CE पैरेलल टू AD एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB. राइट. अब सॉल्यूशन. अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि आपने AECD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECD. इन क्वाड्रिलेटरल AECD. तो AE दिस AB पैरेलल DC, AB इज पैरेलल टू DC. अगर AB DC के पैरेलल है तो AB को हम AE बोल सकते हैं. यस, पैरेलल टू DC. तो AE और DC क्या हो गए? पैरेलल. फिर AD और CE पैरेलल हैं. क्यों है पैरेलल? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन की, बाय कंस्ट्रक्शन. तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर्स जो है वो पैरेलल हो जाएं तो वो क्या बनेगी? पैरेललोग्राम. तो देयरफॉर AECD is a parallelogram. This is a major step which must be written. अब जितना AE है उतना ही DC होगा. क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और दोनों जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. राइट. इसी तरह से AD और CE भी बराबर हो जाएंगे. AD विल बी इक्वल टू CE, और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 15 सेंटीमीटर. इसका भी रीजन वही रहेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब CE भी 15, CB भी 15. अब आप इस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो इन ट्राइंगल CFE एंड ट्राइंगल CFB, इस एंगल को आप 1 नंबर दे दो और इसको क्या दे दो? 2. तो
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिखेंगे आप ईच 90 डिग्री। और क्यों है 90 डिग्री? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन की, राइट। और इसके सामने वाली साइड सीई इक्वल होगी सीबी की। आप इतना लिखेंगे सिर्फ ईच 15 सेंटीमीटर, राइट। और सीएफ और सीएफ जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन। अब ये देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल CFE will be congruent to triangle CFB। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो EF और FB तो बराबर हो गए। EF will be equal to FB, और इसका रीजन क्या है? CPCT। अब जितना EF है उतना ही FB है, और ये दोनों जो है वो किसके हाफ होंगे? EB के। अब EB कितना आपके पास? ये तो है नहीं, तो EB आपको यहां फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो EB कैसे आएगा? ये देखो, EB विल बी इक्वल टू AB माइनस AE, AB माइनस AE। अब AB कितना सेंटीमीटर है आपके पास? ये देखो 36 है, और AE कितना है? दिस AE इक्वल टू 12 यू हैव फाउंड ऑलरेडी। तो 36 माइनस 12 कितना हो गया? 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2, 24 सेंटीमीटर। ये आपको शो करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ 24 सेंटीमीटर कितना बनेगा? 12 सेंटीमीटर। हाउ मच? 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास EF भी आ गया, FB भी आ गया। अब किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल के ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल पर, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मैं CFB पर लगा देता हूं, CFB। कहां पर है CFB? ये देखो CFB, इसमें ये साइड जो है ना 90 के सामने, ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप लिखेंगे क्या इसमें कि BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर। और BC आपके पास है 15, तो 15 का स्क्वायर। CF आपके पास है नहीं, उसको ऐसे लिख दो CF स्क्वायर। और FB आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 12, तो 12 का स्क्वायर। 15 15s आर 225 इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस 12 12s आर 144। तो यहां से CF स्क्वायर क्या आएगा? 225 माइनस 144। 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 4 इज 8, तो कितना आ गया? 81। तो यहां से CF स्क्वायर आएगा 9 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर CF कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, area of trapezium ABCD, it is 1/2 into sum of parallel sides, so AB plus CD into altitude, altitude क्या है यहां पर? CF, so it is 1/2 into AB है 36 प्लस CD है 12 into CF आपने फाइंड आउट कर लिया 9, और यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। So it is 1/2, 36 plus 12, 48
इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. So 9 4s are 36, 3 is carry, 9 2s are 18 and 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ऑर्फेनेजेस, ऑर्फेनेजेस मीन्स अनाथालय। Orphanage owners often need extra support by helping such organizations to take on more children and provide better quality care. We can have good impact on the society. For this, Sunita donated rupees x square plus 1 upon x square to an orphanage children. Her friend Anita wanted to know the amount donated by her. Sunita did not disclose the amount, but she gave x plus 1 upon x is equal to 8. तो जब भी आपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो स्टेटमेंट को 1 से 2 बार रीड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो बोला ऑर्फेनेज ऑनर्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए और इन ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करने के लिए बाय या हेल्प करके हम बच्चों को बेटर क्वालिटी केयर जो है वो दे सकते हैं और अपना इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए एक लेडी थी सुनीता, उसने इतना अमाउंट डोनेट किया ऑर्फेनेज चिल्ड्रन को और उसकी फ्रेंड जो अनीता है वो जानना चाहती थी कि उसने कितना अमाउंट डोनेट किया। तो सुनीता ने ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील नहीं की, डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन उसने इतना अमाउंट दिया था। अब इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन है 5। अब यहां पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जो आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपको बेस्ट 4 करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये आता है, ये नहीं आता, तो आपने 1 के बाद 3 कर लेना है, फिर 4 कर लो, फिर 5 कर लो। अगर आपने ये 5 के 5 कर दिए और आपका ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको पहले 4 के ही अवॉइडिंग होगी, भले ही आपका 5वां क्वेश्चन सही हो, आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बेस्ट 4 की ऑप्शन याद रखनी है कि आपने पहले वही क्वेश्चन करने हैं 4 जो आपको बिल्कुल बेस्ट आते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। सो दिस इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें मैं बताऊंगा इसके आंसर भी आपने एग्जाम में कैसे लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट डोनेटेड बाय सुनीता टू ऑर्फेनेज चिल्ड्रन। तो यहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि सुनीता डिड नॉट डिस्क्लोज बट शी गेव x plus 1 upon x is equal to 8 and for this purpose Sunita donated rupees this x square plus 1 upon x square। अब आपने जो एक्चुअल अमाउंट सुनीता ने डोनेट किया था वो ये किया था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू निकालोगे। अब इसको कैसे करना है क्वेश्चन को, x प्लस 1 अपॉन x कितना था 8। अब आपने इसकी क्या करनी है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है। तो x प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है तो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं करना, शॉर्ट में करेंगे। इट इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x एंड 8 8s are 64। तो ये बना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, देन x x कैंसल्ड, इट इज इक्वल टू 64 और ये प्लस 2 जो है वो राइट में जाकर -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 62। तो अब आपको इसका आंसर यहां मिल चुका। तो 62 जो है वो ऑप्शन ए है। तो अब आपने ऐसे लिखना है इसका आंसर दिस इज ए ऑप्शन एंड 62। ऑप्शन भी लिखनी है और आंसर भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2,
राइट द फॉर्मूला फॉर x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वेयर, ये तो होगा नहीं। दिस इज x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, यस। आप इसको ओपन करके शो भी कर दो, तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला पूछा। a प्लस बी का होल स्क्वेयर आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। एक्स एक्स को कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो ये आंसर आपका बी पार्ट है, राइट। तो आप लिखेंगे ऐसे आंसर और यहां लिखेंगे बी पार्ट, एंड देन हियर यू विल राइट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ऑप्शन भी लिखनी है और इसका आंसर भी लिखना है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, देन यू आर टू फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो यहां x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, तो आप इसकी दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वेयर। a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सो x का होल स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एंड 5 5s are 25। x x cancel। now here we will do x square plus 1 upon x square is equal to 25 माइनस 2 राइट में शिफ्ट हो जाएगा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 27। तो इसका आंसर जो 27 है वो सी ऑप्शन है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर सी एंड दैट इज 27। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई a प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो आप सिंप्लीफाई करो इसको, ये बनेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसी तरह से ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो 2ab प्लस का और माइनस का कैंसिल, ए स्क्वेयर 2 बार है तो ये बनेगा 2a स्क्वेयर, बी स्क्वेयर भी 2 बार है तो ये बनेगा प्लस 2b स्क्वेयर। सो 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर। तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन बी है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऐसे करके, आंसर ऑप्शन बी एंड इट इज 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5। Which type of message provided by the question? Charity, to show off money, cheating, none of these। बड़ा क्लियर है कि इसमें ऑर्फेनेज को चैरिटी ही दी जा रही है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आंसर ए पार्ट एंड देन चैरिटी। तो ये थे इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन। बस ये याद रखना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपने सबसे पहले वो 4 करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मान लो आपका ये क्वेश्चन आपको आता था, आपने कर दिया, सही भी है। ये आपको आता था, आपने कर दिया और सही भी है। ये आपको नहीं आता था, आपने ट्राई तो कर लिया लेकिन गलत हो गया, ये आपका सही था और ये भी सही था। तो आपकी अवॉइडिंग जो है वो 4 में से 3 मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि आपका इसके नंबर नहीं मिलेंगे, बेस्ट 4 के नंबर ही मिलेंगे। तो आपने ध्यान से वही 4 क्वेश्चन पहले करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं।